السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ کوئی آیا؟ آؤ ذرا جلدی جلدی. ہاں جلدی جلدی. تھوڑا سلام دعا کرنے کے لیے، حال چال معلوم کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. ماشاء اللہ. ابھی تو کوئی بھی نہیں آ رہا، سب سو گئے، رات زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے. ماشاء اللہ. سید واجد صاحب آ گئے، ماشاء اللہ. اہلاً وسہلاً واجد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں، سو تو نہیں رہے تھے آج؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد الرحمن بھی آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بس میں نے سوچا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سارے کے سارے تھوڑے پریشان ہیں، تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ بیٹھتے ہیں. رات زیادہ ہو گئی ہے، دیکھ چیک کرنے کے لیے بیٹھا میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اسد صاحب اور واجد صاحب سب آ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی جلدی سب کو انوائٹ کر لو 2-5 منٹ میں. بس زیادہ دیر میں نہیں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا میں انشاءاللہ تعالی. تو تھوڑی بات چیت کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی سوال وغیرہ ہے تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. کیا سوالات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تھوڑا سا دور کی وجہ سے نام نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے. ہاں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی جی جی. اہلاً وسہلاً. آ گئے آپ. اللہ آپ کو بھی اسد صاحب صحت و عافیت سے رکھے. حسن صاحب ماشاء اللہ. عارف خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر الدین صاحب ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت؟ میرا چشمہ لگانا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ کون کون حضرات ہیں. روشنی کی وجہ سے ذرا سا میرا خیال ہے ادھر سے روشنی کم آ رہی ہے. جی اللہ کا فضل ہے الحمد للہ. ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طاہر صاحب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. شہباز اکبر انصاری اہلاً وسہلاً. یونس انصاری صاحب ماشاء اللہ. منظور علی صاحب میں چشمہ اس لیے لگا لیا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ سکوں کم از کم. آمین یا رب العالمین. حسن صاحب، شان صاحب اللہ باری فیک، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے. اچھا عملوں سے. اختر صاحب ماشاء اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور شیخ معین الاسلام اہلاً وسہلاً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا فضل ہے الحمد للہ. شیخ محمد عقیل صاحب کیا بات ہے ماشاء اللہ. کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے الحمد للہ. جی شمس صاحب سلطان ساجد سلطان پوری اہلاً وسہلاً. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، مبارک رکھے. اللہ آپ لوگوں کو بھی شان صاحب حفاظت سے رکھے. وعلیکم السلام. محمد فیض صاحب جزاک اللہ خیر. منظوری صاحب بس وہ آج میں تھوڑا سا فرصت ملی کام سے، تو میں نے سوچا کہ ذرا سا حال چال معلوم کروں کہ کورونا کی وجہ سے بہت سارے ہمارے احباب پریشان ہوں گے. تھوڑا سا ان کو میں میسج دوں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں اصول ہے الوقایۃ خیر من العلاج. علاج سے بہتر پرہیز ہے، اور اس دور میں اس وقت پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد
अपने बचाव के सामान ले लिया करो। ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान करीम के अंदर वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को या ख़ुद को हलाकत और तबाही की तरफ मत ले जाओ। तो ज़रूरी है कि जिस अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है कि हमारे ऊपर भरोसा करो, मैं तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी। उसी अल्लाह ने हमें यह भी फरमाया है कि खुज़ू हिज़्रकुम, अपने बचाव के सामान ले लिया करो। तो बेशक हमको चाहिए कि ये कोरोना वायरस जो एक तरह से अल्लाह का अज़ाब है और हमारे ही गुनाहों के सिले में ये तमाम सब चीज़ें आई हुई हैं, तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें और वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हमारी गवर्नमेंट, सब दुनिया की गवर्नमेंट जो बता रही है, हुकूमतें जो बता रही हैं, ख़ास तौर से छींक वगैरह आवे, तो वैसे भी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती थी तो आप दबा के भी, और बल्कि हाथ या कुछ चीज़ रख लिया करते थे। तो आप भी रुमाल है, टिश्यू है, कोई भी चीज़ छींक आए तो उसको रख लिया करें। इसी तरह से आजकल जो है हाथ साबुन से धुलने का मसला है, तो हाथ साबुन से धुल लिया करें और बाहर ना घूमें। सबसे बड़ी चीज़, इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज यह है कि बाहर ना घूमें। जी, बाहर ना घूमें, तो बाहर नहीं घूमना चाहिए, बाहर और ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भीड़ भाड़ ही में कोरोना वायरस का हमला होता है। तो भीड़ भाड़ से दूर रहें, बाहर ज़्यादा ना घूमें। देखें, जुमा और जमात भी आपके लिए, इसी वजह से अहले इल्म ने फतवा दिया कि ये घरों में पढ़ लो, उसको कायम करो। इसीलिए कि, लेकिन अफसोस कि आज हमारे मुल्कों के अंदर ये केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, तदबीर नहीं कर, एहतियाती तदाबीर से हम नहीं चल रहे हैं। तो नंबर एक इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आप क्या कहते हैं, हाथ वगैरह आप हमेशा धुला करें और मुसाफे से थोड़ा दूर रहें, हाथ वगैरह मिलाने से, भीड़ भाड़ से दूर रहें। और आज कहाँ आए तो कम से कम उसको वो करें, यानी बचाव करें टिश्यू से या रुमाल से, और ज़्यादा तर घर में रहें। ये सबसे बड़ी चीज़ है, घर के अंदर रहें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और माशाल्लाह सलाम तो बड़े हो गए, तो बेहतर यह है कि अगर कोई सवाल वगैरह है तो पूछें, इंशाल्लाह बेहतर है मालूमाती तौर पर। जी, सवाल है कि मुशरिकीन को सलाम करना कैसा है, सलाम करने में पहल करना कैसा है? अच्छा, ये मौजूदा हालात में जो वो हैं, मसाइल हैं, इस ताल्लुक़ से मिसल बिलखुसूस रमज़ान मुबारक आने वाला है। तो रमज़ान में क्या करना चाहिए, हमें कैसे, तरावीह का मसला है, जमात से नमाज़ पढ़ने का मसला, मस्जिदें बंद हैं, यकीनन मस्जिदें बंद हैं। हमको चाहिए कि अपने घरों में बाजमात नमाज अदा करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जुमा पढ़ रहे हैं, जुमे के अलावा हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुनन का अहतमाम करें। जो गफलत करते थे सुन्नतों में, तो कम से कम सुनन का अहतमाम करें, नवाफिल का अहतमाम करें। रात आपकी है, तहज्जुद का अहतमाम करें। और इसी तरह से तरावीह का मसला जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और पूछ रहे हैं कि भाई हम तरावीह अब घरों में कैसे पढ़ें, हमें कोई हाफिज़ नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा? अल्लाह के बंदे, भले हाफिज़ नहीं हैं, आपको जो भी सूरतें याद हैं, अपने बाल बच्चों को लेकर के, जैसे आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही उन सूरतों को आप पढ़ें। और बिलखुसूस अगर कुरान, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो इस्लाम के अंदर इतनी वुसअत है कि अल्लाह तबारक ताला इसका हुक्म, इसका बाकायदे इसकी दलील मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ग़ुलाम ज़कवान को लेकर के तरावीह की नमाज पढ़ा करती थी और वो कुरान देख करके पढ़ाते थे। तो अगर आपको इतना शौक़ है कुरान सुनने का, माशाअल्लाह, तो आप ख़ुद ही या आपके औलाद में कोई लड़का है तो वो इमामत कराए और कुरान हाथ में ले करके आप कुरान पूरा घर के अंदर ख़त्म करें, पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह लंबा क़याम करें, 4-4 सफ़े, 5-5 सफ़े, और इस तरह से रुकू और सुजूद, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि आप अपने घरों को, एक देखें, मस्जिदें नहीं आपके लिए बंद की गई हैं, मस्जिदें हैं, लेकिन एक अब ये देखें, तारीख़ इंसानी में मैं समझता हूँ कि 1400-1500 बरस में ये पहला मौका है कि इतने दिन तक हमको ब्रेक मिल रहा है और लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते, मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते। ये भी, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत है। बहरहाल तो हमको चाहिए कि हम नहायत ही एहतमाम के साथ, इस्लामी शियार के साथ अपने घरों को मुसल्ला बनाएं, अपने घरों के अंदर मुसल्ला बना करके, और घर, एक मस्जिद छूटी तो घर घर मस्जिद
مسجد بن گئی الحمدللہ۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجد، ہم میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ وباؤں کی صورت میں قنوت نازلہ کروانا، مختصر دینا۔ بالکل، وباؤں کی صورت میں سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے، وباؤں کی صورت میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اور یہ وبا تو بہت بڑی ہے، اس وبا کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو مغرب میں، عشاء میں، فجر میں دعائے قنوت کا اہتمام کر کے، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پیپرز ہیں، پیپرز کے اوپر قنوت نازلہ ہے، دعائیں ہیں، مخصوص تو کوئی دعا نہیں ہے لیکن کم از کم اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت یہ دعا ہے، اور اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک یہ دعا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع اور معنی دعا ہے۔ آپ پیپر میں یا کتاب لے کر کے آپ کھڑے ہو کر کے اس دعا کو پڑھیں، قنوت نازلہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، بہرحال پڑھ کر کے پڑھیں، اہتمام کریں، بالکل پڑھنا چاہیے، اور فرض نماز میں پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں آپ کے بچے پیچھے آمین کہیں گے اور آپ اس کو دیکھ کر کے بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان دنوں گھروں پہ اذان دینا کیسا ہے؟ گھروں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ گھروں پر اذان دینا کیسا ہے۔ گھروں پہ اذان دینا مطلب آج کل جو انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بہت سارے لوگ رات کے 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے وبا کو دور کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن وہ روایتیں ضعیف بلکہ موضوع کی حد تک ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اس لیے یہ بدعت ہے، یہ نئی چیزیں نہیں ایجاد کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ جیسے کہ ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی رات کے وقت اذان دی جائے تو اس سے وبائیں بھاگتی ہیں، تو بھیا آپ نے رات کے وقت تو اذان دی نا، عشاء کی ایک اذان دی تو وہ اذان سے وبا بھاگ گئی، وہ بھی تو رات ہی کی اذان ہے۔ ایکسٹرا کسی اذان کو دینا 12-1 بجے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ اسی طرح سحری کے وقت ایک اذان ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، اور آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر سحر کے وقت اذان ہوتی ہے، تو وہ بھی رات ہی کے وقت ہوتی ہے، یوں سمجھیے آپ سحر کے دخول کے وقت، تو وہ بھی اذان کافی ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ سنتوں کے اوپر عمل کرو، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ آخری وقت ہے؟ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ نہیں، مسلمانوں کے اوپر یہ کوئی پہلا ظلم نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی آخری ہے، ہرگز نہیں۔ اما آپ نے تو وہ ظلم دیکھے نہیں، آپ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ظلم کا مطالعہ کر لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ابھی تو ہم اس حد تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ پھر دوسری اس کے بعد جو مظالم ہوئے ہیں ائمہ پر، چاہے امام احمد بن حنبل، 3 بادشاہوں کے ظلم، بادشاہوں نے ان کے اوپر ظلم کیے۔ آج ہمارے اوپر تو کوئی خاص ظلم ہم اس کو دیکھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ آخری نہیں ہے، ابھی تو قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی نا امید نہ ہوں، اللہ سے پر امید رہیں۔ اور اللہ رب العزت نے 2 باتیں بتائی ہیں قرآن کریم کے اندر، ایک تو یہ کہ لیمیز الخبیث من الطیب، ایک تو یہ ہے کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں یہ اچھے اور برے، مومنوں کے درمیان جو اچھے ہیں اور برے ہیں ان کے درمیان تمیز کے لیے آتی ہے۔ وَلَيُمَحِّصْ کا لفظ بھی ہے، تمحیص، اور ایک لفظ ہے کہ تمحیص کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کو یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھتے تھے دعا کرتے تھے اللہم محصنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، مٹا دے۔ تو یہ بلائیں گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی آتی ہیں، اور یہ بلائیں، وبائیں مومنوں کے اور منافقوں کے، اچھے اور برے لوگوں کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان اور حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہمارے ارحم الراحمین ہیں، ہمارے اوپر خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، رحمت فرمائے گا۔ اور اللہ کے مخلوق کے اوپر رحم کیجئے۔ آج کل جانور
भूखे मर रहे हैं। उसकी वजह, आज इंसान भूखे मर रहा है, उसे खाना नसीब नहीं हो रहा, तो बेचारे हैवानात, चरिंद परिंद जो बेचारे इंसानों के साथ रहते हैं, कुत्ते बिल्लियां, इन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा है, इनका भी ख्याल रखें। जहां हम अपने भाइयों का, बहनों का, गरीबों का बिला तमीज़ मजहब व मिल्लत, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं, ये सारे अल्लाह के बंदे हैं। आपको अल्लाह ने दिया है, इनकी मदद करें, इनको खिलाएं, इनके लिए दवाएं, इनके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियोज़ में और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आज मुसलमान माशाअल्लाह बड़ी फ़राख दिली का और कुशादा दिली का माशाअल्लाह तबारक अल्लाह एहतमाम करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी गैर मुस्लिमीन जो मर गए बेचारे, उनको उनके ख़ानदान, उनके रिश्तेदार उनको छोड़ के भाग गए, लेकिन आज मुसलमानों ने उनको नहलाया धुलाया, कंधों पे उठा के उनको उनके आखिरी संस्कार जो वो थे उनके जैसे होते हैं, वहाँ तक उनको मरघटों तक पहुँचाया, या मसान तक जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं या उनके मुर्दे दफन होते हैं, वहाँ तक पहुँचाया। बहुत बड़ी हमने देखा हिंदुस्तान के मुसलमानों को माशाअल्लाह तबारक अल्लाह नहायत ही रवादारी का ख्याल एहतमाम कर रहे हैं इस वक्त। ये बहुत अच्छा मौका है। हमें चाहिए इंसानियत से प्यार करना। जो लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, वो शिकस्त खाएंगे, वो टूटेंगे, बिखरेंगे, वो अपने अंदर का जो जहर है वो उनके अंदर है, वो जाहिर कर रहे हैं। आपके अंदर जहर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दीन रहमत है, मुसलमान रहमत। आपको चाहिए कि आप सबसे प्यार करें, हर वतन के बासी से, जो भी अपने वतन का है या इंसान है, किसी भी वतन का, किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का हो, हमें उससे मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। इलाज, दवा, ये हमें उनको नहीं देखना है कि वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। हमें अपना ज़र्फ देखना, ज़र्फ की बात है। कुल्लो इनाइन यतरश्शु बिमा फीह, आदमी के अंदर जो होता है वही टपकता है। आपके अंदर से रहम टपकना चाहिए। आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम के दावेदार हैं, और इस्लाम दीन रहमत है, तो आपको भी रहीम, करीम, शफीक या अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, सुन्नतें हैं, इनके ऊपर अमल करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कोई सवाल है तो बेशक। 3 जुमा छोड़ने वाले ईमान से खारिज हो जाते हैं, इस हालत में क्या करें? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल बासित साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अकील साहब भी आ गए, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मोहम्मद इम्तियाज़ भाई, अच्छा एक सवाल भाइयों ने किया है कि 3 जुमा अगर छूट गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दाग लग जाता है, तो उस सिलसिले में क्या है? ये दरअसल जानबूझ करके जो लोग जुमे को निकल जाते हैं, जैसे जमात को निकल जाते हैं, नमाज को निकल जाते हैं, ऐसे ही जुमे को भी निकल जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये उन लोगों के लिए ये हुक्म है जो जानबूझ करके जुमे को नहीं पढ़ते, जुमे का एहतमाम नहीं करते, छोड़ दें। लेकिन ये तो आपके लिए उज़्र शरई है, मजबूरी है, तो इसलिए इसमें कोई कबाहत नहीं है। ऐसे ही आप मुसलसल सफ़र में हैं तो जुमा आपके ऊपर वाजिब नहीं है, बीमार हैं तो आपके ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ जुमा नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ज़हीर साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बस अल्लाह खादिम बनाए। शेर वगैरह क्या है, अल्लाह ताला खादिम बनाए हम सबको। अल्लाह ताला दीन इस्लाम की खिदमत, इंसानों की खिदमत, लोगों की खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। भाइयों, कोरोना के इस बीमारी महामारी के वक्त आपको चाहिए कि आप अपने घरों को लाजिम पकड़ें, घरों में रहें, और जो है क्या कहते हैं, मस्जिदें भी, जुमा भी आपसे माफ़ कर दी गई की शरीयत के हिसाब से, तो आप अपने घरों को नमाज की जगह बना लें। तरावीह का, क़याम का, सहर का, सब का एहतमाम करें। बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर मैं ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों को ये नसीहत करूँगा कि जो सहरी के वक्त लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करते हैं न करें, बल्कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मोबाइल है, हर घर में सब कुछ पता है, इसलिए वो खुद ही पता लगा लेते हैं कि साहब कब सहरी है, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। हमें ये सब चीज़ें तो पहले भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लाउड स्पीकर वगैरह, इन तमाम। जहाँ हम मिलजुल के रहते हैं, हर सोसाइटी और समाज के और हर मज़हब के लोग रहते हैं, वहाँ हमें एक दूसरे का आराम का और एक दूसरे की तकलीफ़ और दुख सुख का भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारे इस लाउड स्पीकर से उनको तकलीफ। सिर्फ अजान देना काफ़ी है, बस अजान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकायदे बहुत सारे लोग 2-2 बजे, 1-1 बजे रात से नातें, नज़में, एलानात, उठ जाओ, हर 5-10 मिनट पे सहरी के अंदर इतना बाकी है, सहरी के अंदर उतना बाकी। ये तमाम सब बकवास है, ये तमाम सब गलत बात है। हम मुसलमानों कब सुधरेंगे?
हमको चाहिए कि इन तमाम सब चीज़ों से परहेज करें भाई। इससे फितना पैदा होता है, इससे लोगों के अंदर जहर पैदा होता है। इससे हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का मिजाज ये नहीं है, और ना ही हमें और ना ही ये कोई शरीयत है, ना ही इस्लाम ने हमको इस बात का मुकल्लफ बनाया कि हम सबको पूरे महल्ले वालों को लाउड स्पीकर खोल खोल करके और चिल्लाएं और उसके अंदर हर 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर लोगों को जगाएं। सबको जागना है, जिसको जागेगा, जिसको रखना है रखेगा, आपने बता दिया खलास बस। लेकिन ये तमाम से लाउड स्पीकरों के जरिए धमा चौकड़ी मका मचाना, हम तमाम मस्जिद के मुतवल्लियान से और मुअज्जिनीन और इम्मा से ये दरख्वास्त करते हैं और गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के लिए इन लाउड स्पीकरों को कभी भी किसी भी वक्त, चाहे कोरोना रहे न रहे, हरगिज अजान के लिए इस्तेमाल करें बस। बाकी उमूर के लिए आप अपने मस्जिद के अंदर जो चाहे करें, जैसे चाहे करें, जो आप करते हो करो, लेकिन दूसरों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, आपके महलों का ख्याल रखो। किसी का एग्जाम है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई मरीज है, कुछ भी, आप चिल्ला रहे हैं सहरी के लिए उठो, फलां के लिए उठो, गलत बात है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम को रुसवा और बदनाम करने की चीज़ है। इसलिए बराह करम हमारे किसी किरदार से, हमारे किसी कैरेक्टर से इस्लाम रुसवा नहीं होना चाहिए, मुसलमान जलील नहीं होना चाहिए। हम बहुत हरकतें गलत करके हमने इस्लाम को रुसवा और जलील किया है। हमें अल्लाह से तौबा करना चाहिए, हमें कुरान और सुन्नत की तरफ पलटना चाहिए। मेरे भाइयों, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बुरा नहीं लगनी चाहिए ये बातें, ये नसीहत की हैं, इन्हें बुरा न समझो, इन्हें बुरा न मानो। समझे कि नहीं समझे? हम सब एक हैं, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। आज दुनिया हैरान है, आज दुनिया शस्दर है, आज दुनिया जान गई लिमनिल मुल्क, इस मुल्क का बादशाह, इस दुनिया का बादशाह कौन है। सूरज निकल रहे हैं, चांद निकल रहे हैं, रात आ रही है, दिन जा रहे हैं, सड़कें वीरान हैं। जहां इज़्दिहाम, फजाओं में फ्लाइटें चलती थीं, रोडों के ऊपर गाड़ियां दौड़ती थीं, ट्रेनें, लोग इतने बिजी थे, जब भी उनसे कुछ कहो, मैं बिजी हूं, मैं जरा मशगूल हूं, मैं ये हूं। आज सारी सबकी मशगूलियत का पता चल गया। आज अल्लाह ने ये बता दिया, मैं हूं इस दुनिया का बादशाह, मेरे हाथ में सब कुछ है। ये अल्लाह ने बताया दुनिया वालों को। आज दुनिया हैरान है, छुपे बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। कहां सरहदें बांट रहे थे, कहां इंसान में जात पात ऊंच नीच का बंटवारा करके लोगों को अलग अलग कर रहे थे, कहां सरहदें बांट रहे थे, तू फलां, तेरा ये, तेरा वो, मेरा वो, तेरा ये, मजहब के नाम पर, मुल्क के नाम पर, जमीन के नाम पर, जायदाद के नाम पर, जात के नाम पर, नस्ल के नाम पर, खून के नाम पर सब तकसीम कर रहे। अल्लाह ताला ने कहा चलो आओ। अल्लाह ने ऐसा बंटवारा किया कि आज अपने भाई से बटे हैं, मिल नहीं सकते, 24 घंटे का लॉकडाउन पड़े। इसलिए ये अल्लाह से तौबा करो। ऐ लोगो, ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, इसका मालिक अल्लाह है, तुम नहीं हो। कोई वजीर, कोई अमेरिका, कोई जापान, कोई चाइना नहीं है। आज दुनिया को पता चल गया सुपर पावर कौन है। सुपर पावर ऊपर वाला है, जिसे तुम गालियां देते हो, जिसके साथ तुम साझेदारी करते हो, जिसे तुम बुरा कहते हो, सुपर पावर ऊपर वाला है, ऊपर वाला। वही ईश्वर परमात्मा अल्लाह है, कोई मखलूक नहीं है। अल्लाह कोई मखलूक नहीं है, अल्लाह कोई इंसान नहीं है, अल्लाह कोई जान हैवान या ऐसा नहीं है। अल्लाह है, अल्लाह वो जात है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। इसलिए ज्यादा सरकशी, तकब्बुर, गुरूर, घमंड न करो, तोड़ दिए जाओगे, याद रखो। और दुनिया में न तुम्हें जमीन बचाएगी, न आसमान, न चांद, न सूरज, कोई नहीं बचाएगा। चाहे उनकी पूजा नहीं, चाहे जाके उन्हें जान दे दो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सब गुलाम हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, मानो इस हकीकत को। जी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। कोई देवी, कोई देवता, कोई जिन्न, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई कब्र, कोई दरगाह, कोई मजार, कोई श्रद्धा, कोई अलम, कुछ भी नहीं। आज सारे मजार लाख पड़े हुए हैं। कहाँ गए ये मसीहा? आज तुम अल्लाह को डायरेक्ट पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? कहाँ, कैसे पुकारते हो? सोचो इस कौन है लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती देने वाला? अल्लाह है, वही अल्लाह है।
उसी को पुकारो, उसी को मानो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तौबा करो अल्लाह ताला से, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर न बनाओ, शरीक न बनाओ, साझीदार न बनाओ। आपस में मोहब्बत करो, अखलाक से रहो, एक दूसरे की मदद करो, ताउन करो। कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया, 2 रोटी है, 1 रोटी है, आधी खाओ, आधी अपने पड़ोसी को खिलाओ। वो हिंदू हो, वो यहूदी हो, वो नसरानी हो, वो सिख हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तुम्हारी जात का हो ना हो, तुम्हारी बिरादरी का हो ना, इंसान है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है। इसलिए उसके साथ मोहब्बत करो, मेल करो, जोल करो जी, अपने अखलाक के ज़रिए से। हाँ जी। मैं हुदूद हरम के जमात के साथ घर में नमाज लाइव अदा कर सकता हूँ हरम की देखकर? अच्छा, क्या मैं जो अच्छा माशाल्लाह, क्या मैं हुदूदुल हरम में हरम की जमात के साथ घर में गर्ज नमाज लाइव अदा कर? नहीं, फ़र्ज़ नमाज अच्छा नहीं कर सकते आप, क्योंकि सफ़ों का इल्हाक आपस में मुत्तसिल होना ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए, और टेलीविज़न रख कर या रेडियो रख करके थोड़ी जमात होती है ना। आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करेंगे? अल्लाह ने आपको इमामत का मकाम दिया है, आप अपने घर की खुद इमामत करें। जी जनाब अली, फ़र्ज़ नमाज खुद पढ़ाएं। तरावी का वक्त आ रहा है, नमाज रोज़े का अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखें। जो मरीज़ हैं उनके लिए अलग मसला है, जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं उनके लिए अलग मसला है। अगर वो, या जो हामिला हैं या बच्चे के ऊपर खौफ है, वो रोज़ा बाद में रखेंगी, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो रख लें बेहतर है। लेकिन अगर उनको खौफ है बीमारी का या उसका, तो उनके लिए अगर बाद में रोज़ा रखना है, ठीक है, अभी नहीं है। तो इसलिए हरम का लाइव जो भी होता है वहाँ से आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जी, और कोई सवाल? ऑनलाइन जमात कराना, ऑनलाइन जुमा कोई भी ऑनलाइन, न जमात न जुमा, कुछ भी नहीं है जी। जब जमात ही नहीं है तो जुमा भी मस्जिदों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें रुकावट हैं, तो इसलिए आदमी को बचना चाहिए जी। और कोई सवाल? इस बार हज कैंसिल हो गया है, आपका ख्याल? नहीं, अभी इसका ऐलान, हज के कैंसिल होने का ऐलान तो अभी नहीं आया है। अलबत्ता तरावीह का और ईद की नमाज का, ईद उल फित्र की, ये यहाँ मुफ्ती आज़म ममलकत सऊदी अरबिया ने ये ऐलान किया है कि घरों में तरावीह का अहतमाम करें। कोरोना के ख़त्म होने तक देखेंगे, ईद तक अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने घरों में क्या कहते हैं, ईद भी पढ़ लेंगे, नवाफिल अदा कर लेंगे, क्या करेंगे। आप रमज़ान में कब लाइव आ रहे हैं? मैं तो एक भाई ने पूछा है कब लाइव आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ रोज़ आऊँ, ताकि आप लोगों से बिलमुशाफा गुफ्तगू हो, बातचीत हो। बड़ा दिल करता था, लेकिन मेरी मसरूफियात कुछ थीं और कुछ काम पड़े हुए थे, इसलिए मैं उसके समेटने में लगा हुआ था। बाकी तो बहुत सारे अहबाब माशाल्लाह लाइव आते हैं और इंशाल्लाह लाइव आते रहेंगे, और आप लोगों के सवालात और जवाबात इंशाल्लाह देते रहेंगे। ये अल्लाह ताला का फजल है कि ये बड़ा अच्छा मौका है और फुर्सत है लोगों से मुलाकात करने का। तो एक दरवाज़ा बंद हुआ तो 10 दरवाजे खुल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है हम सब की हिफाजत फरमाए। देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर नमाज के वक़्त आप ज़ीनत अख्तियार करें। और आपकी ज़ीनत ज़ाहिर है आपके लिबास में है, आपकी खुशबू में है, जो भी है। तो अल्लाह के दरबार में खड़े हों तो आप ज़ाहिर है कि उस लिबास में खड़े हों जो उस लिबास में आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा बागैरत है, अल्लाह तो सबसे बड़ा दरबार है। उस दरबार में जा करके आप ऐसे ही सेंडो बंडी और ऐसी रुमाल लपेट के नहीं, बल्कि चाहिए कि ज़ीनत अख्तियार करके जाएं। ये चाहे घरों में नमाज पढ़ें, फिर भी आप ज़ीनत अख्तियार करें, यानी कि आप लिबास कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ें, ताकि आप अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, इसका एहतमाम होना चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। यहूदी और शिया कोरोना फैला रहे हैं, कितना फैला रहे हैं, दज्जाल और इमाम गायब के आने की अलामत है, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? नहीं, ये यहूदी और कोई भी ये कोरोना नहीं फैला रहा है, और जो भी फैला रहा है अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला उससे निपटेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस दुनिया में फितना जिसने भी फैलाया है वो बाकी नहीं बचा है, अल्लाह ताला ने उनका हिसाब व किताब लिया है। आप खामखा इन सब तकल्लुफ़ात में न जाएं, और न ही बहुत सारी ऐसी बातें
سائنٹسٹ اور فلاں اور سیاسی اور غیر سیاسی کہ امریکہ نے پھیلایا تو چائنا نے یہ کرا تو فلاں، آپ اتنی گہرائیوں میں نہ جائیں. خواہ مخواہ ہم بہت زیادہ جب ڈیپ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حالات کے حساب سے جو دنیا جوجھ رہی ہے اور جن احتیاط اور تدابیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک سادھارن منش ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے تئیں اپنے اندر سمٹ جائیں اور اپنا کام کریں. ٹھیک ہے، اور ان سب چکروں میں نہ پڑیں کہ کون پھیلا رہا ہے کون نہیں پھیلا. جو پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ نپٹے گا. ہم اللہ سے دعا کریں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی کرے آپ اسے پریشان نہ ہوں، آپ صحیح رہیں، آپ اچھے رہیں گے تو دنیا اچھی رہے گی. پازیٹیو رہیں، آپ منفی نہ جائیں، آپ نگیٹو نہ سوچ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ حسن ظن رکھیں. ٹھیک ہے، گھر میں جماعت نماز پڑھنے کا حکم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل گھر میں. اب فی الحال تو حکم یہی ہے کہ آپ جو کرونا وائرس کی وجہ سے یا اس طرح کی کوئی بھی بلا بیماری یا بارش یا طوفان یا کیچڑ یا سخت سردی، اس طرح کے جو اوقات آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی فرمایا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو یہ حکم ہے، تو بے شک آپ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. حکم یہی ہوا ہے، حکم ہے کہ آپ پڑھو جماعت کے ساتھ، جیسے آپ مسجد میں جاتے تھے اب اپنے گھروں میں پڑھو. سستی اور کاہلی نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کو بھی اقامت کہنا چاہیے ہر نماز پر، فرض نماز. اور تم اقامت سب کے لیے ہے، کہہ لینا چاہیے، کوئی قباحت کوئی حرج تو نہیں ہے. جی، اور کوئی سوال؟ آج کل انڈیا میں دعوت کا کام کیسے کریں؟ اللہ اکبر. ایک صاحب نے سوال کیا، کیا شیخ جماعت کے ساتھ گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. جمعہ مسجد کے اندر ہے تو مسجد ہی کے اندر پڑھیں. ٹھیک ہے، گھر کے اندر یا چند لوگوں کو ملا کر یا گھروں کی چھتوں پر، ہندوستان میں یا پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، یا کیا لوگوں نے اور پکڑے گئے اور مارے گئے، ذلیل ہوئے. تو کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ خود بھی ذلیل ہو رہے ہو اور دوسروں کو اور اسلام کو بھی ذلیل کر رہے ہو. جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو مہلت دی ہے، مہلت سے فائدہ اٹھائیے. بہت زیادہ مسجد سے محبت آج آپ کو پیدا ہو گئی. اللہ کے بندو، ہمیشہ ہونی چاہیے، رہنی چاہیے ایک مومن کو مسجد سے محبت. بے شک ضروری ہے، تعلق بالکل مسجد کا اور مومن کا تعلق ایسے ہی جیسے مچھلی اور پانی کا تعلق ہے. جیسے ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی ایک مومن، ایک مسلمان بغیر مسجد کے زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے اس موقع آیا ہوا ہے تو آپ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ گھروں میں بیٹھو، گھروں میں رہو، تاکہ دوسروں کی بیماریاں آپ کو نہ لگیں یا آپ کی بیماریاں دوسروں کو نہ لگیں. دونوں بچو، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. تو آپ گھر میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ لاک ڈاؤن نہیں مانتے، آپ کی کیا نصیحت ہے؟ لاک ڈاؤن جو لوگ نہیں مانتے وہ ٹھوک ڈاؤن مانیں گے، پولیس ان کو ڈنڈے مارے گی، ذلیل ہوں گے، بدنام کریں گے، وہی ہوگا. لاک ڈاؤن کیوں نہیں مانتے؟ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. لاک ڈاؤن ہے حکومت کی طرف سے تو لاک ڈاؤن ماننا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے لاک ڈاؤن صرف نہ کرے، لاک ڈاؤن بھی کرے. اور حکومت کو چاہیے، جہاں کی بھی حکومت ہو، کہ وہ باقاعدے اپنے ملک کے باسیوں کی سہولت کے لیے انتظامات بھی کرے. یہ نہیں کہ لاک ڈاؤن کا حکم دے دیا، چاہے مرو چاہے کچڑو، کسی کا کوئی خبر گیری نہ کرے. حکومت کا فرض ہے کہ وہ گھر گھر لوگوں کے ہاں کھانا پہنچائے، راشن پہنچائے. لاک ڈاؤن کیا ہے، حکم منوا رہے ہو تو ضروری ہے کہ آپ مطالبہ کر رہے ہو تو اس کے لیے باقاعدہ ان کا انتظام کرو. ورنہ پتہ چلا کہ گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ جو ہے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے عیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے سعودی عرب کے اندر، ہم سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، چاہے اجنبی ہو، باہر کا ہو، فارنرز ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی، کوئی بھی ہو، یہاں کوئی تمیز نہیں ہے. ملک سلمان جو بادشاہ ہیں یہاں کے حفظہ اللہ، انہوں نے بہترین انتظام سب کے لیے کیا ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے یہاں 1-2 گھنٹے کے لیے دکانیں کھلتی ہیں اور سب کو وہاں انتظام کیا جاتا ہے. دوائیں ہیں، دستانے ہیں، اور باقاعدہ چیکنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی درجہ حرارت
टेम्परेचर कितना है, और बाकायदे गाड़ियां खड़ी हैं कि जहां कहीं भी अगर ऐसे मरीज मिले फौरी तौर पर उनका इलाज हो, कोई भी हो, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बगैर किसी दीन धर्म और सऊदी गैर सऊदी अमरीकी कोई भी हो, सबके लिए, और सबके लिए यहाँ पे लोग जो है इंतजामात कर रहे हैं। लोगों को स्कूल्स के अंदर बसाया जा रहा है, जहाँ हॉस्टल में थे अभी स्कूल खुल गए हैं, स्कूलों के अंदर बाकायदे उनके लिए बेड रखे गए हैं और वहाँ पे उनको रखने का इंतजाम हो रहा है। दवाएं फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री, ये हुकूमत ने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो मार्केटें भी भरी हुई हैं, सब्जियों से, फल से, फ्रूट से, गल्लों से, सब 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 अल्हम्दुलिल्लाह, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, लोगों को मिल भी रहे हैं। दुआ की गुजारिश बहुत सारे लोग करें। अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से महफूज रखे, तमाम पूरी दुनिया के इंसानों को बचाए अल्लाह ताला इस मुसीबत से, और सबको अपना दर्द दिखाए, सबको अल्लाह अपनी मारिफत अता फरमाए, सबको अल्लाह सेहत से, तंदुरुस्ती से रखे, और सबको इस महामारी से अल्लाह ताला बचाए। अपने हम जहाँ जिस मुल्क में हैं, अल्लाह हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमाए, मुल्क के लोगों की हिफाजत फरमाए, हमारे माँ बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सब इंसानों की, सारे इंसानों की हिफाजत फरमाए। और जो लोग इस मुसीबत के वक्त, हमारे मुल्कों के अंदर बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारी खबरें, हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोग डंडे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और लोगों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सब्जी फरोशों को मार रहे हैं। आधार कार्ड ये बने हुए, हर आदमी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ सबसे आधार कार्ड पूछता है। इसको क्या अथॉरिटी और क्या हक हासिल है? हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जलील लोगों को गिरफ्तार करके इनको सलाखों के पीछे डाले। मुल्क को बांटने के चक्कर में है, नफरतें फैला रहे हैं, जब इस वक्त जबकि दुनिया महामारी में फंसी हुई है, मर रहे हैं बेचारे कमजोर ज़ईफ, कमजोर गरीब लोग। हॉस्पिटलों के अंदर नाम पूछ करके तफरका बचाया जा रहा है, मजहब के नाम पर, दीन के धर्म के नाम पर, पहचान जात पात मारते हैं जलील लोग डंडे ले करके। ये जो आम लोग हैं, अपने आप को पता नहीं ये क्या समझते हैं, इन्होंने हर सरहदें बांटना शुरू कर दी हैं। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि आप ऐसे लोगों की पहचान करके ऐसे लोगों को जो है वाजिबी सजा दें इनको, क्योंकि ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के लोगों को बांट रहे हैं। ये खबीस लोग हैं, ये जहर हैं हमारे सोसाइटी और हमारे देश के लिए, ये जहर हैं। ऐसे लोगों को हरगिज जीने का भी हक नहीं है, इन्हें सलाखों के पीछे डलवाइए आप। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा। क्यों? इसलिए कि हमारा देश एक है, अखंड भारत है, उसकी अखंडता जो है यही हमारी पहचान है। हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब यहाँ कोई सऊदी अरबी या कोई मसरी या कोई दूसरे देश का आदमी हमें वीडियो दिखाता है, ये देखो तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा, ये देखो तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाह की कसम हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। क्यों जलील कर रहे हैं हमें दुनिया के अंदर? हम यहाँ अपने वतन को, देश को छोड़ करके यहाँ रोजियां कमाने के लिए बैठ करके हम अपने मुल्क की आबरू और इज्जत और वहाँ की करेंसी के लिए भी मेहनत करते हैं, और आप वहाँ बैठ करके हिंदू मुस्लिम सियासत करवा रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि कोरोना खुद ही मार रहा है। अल्लाह ना करे तुम्हें पकड़ ले, तुम्हारी आल औलाद को पकड़ ले, तो क्या हशर होगा तुम्हारा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है और मेरी अपील है जिम्मेदारान से भी कि अपने अपने स्टेट में, अपने अपने गांव में, अपने अपने बस्ती में इन तमाम सब चीज़ों को प्यार और मोहब्बत से डील करें। सबको मोहब्बत सिखाएं, अखलाक सिखाएं, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। अपने मुल्क के ऊपर बला आई है, मुसीबत आई है, इस मुसीबत से जो है क्या कहते हैं, डट करके इस मुसीबत से मुकाबला करना सिखाइए। हिंदू मुस्लिम क्या है? न तुम हमारे बगैर जी सकते हो, न हम तुम्हारे बगैर जी सकते हैं। भाई आप कैसी बात कर रहे हो? हम सब एक हैं, हमारा मुल्क एक है। हमें चाहिए कि हम ये सियासत ना करें, ना ही इस तरह की नफरत और अदावत की बात करें। जो लोग करते हैं ऐसे लोग देशद्रोही लोग हैं, टेररिस्ट और दहशतगर्द लोग, आतंकवादी हैं। ये ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, ऐसे लोग कभी भी देश के वफादार नहीं हो सकते। अज़ाब और आजमाइश में फ़र्क। अज़ाब और आजमाइश में फ़र्क क्या है? जाहिर है कि मुजरिम के लिए अज़ाब है, जो मुजरिम हैं, जो जालिम हैं, उनके लिए अज़ाब है। और अगर इस वबा से वो लोग जो ईमानदार हैं,
جو سچے ہیں، جو اچھے ہیں، جو لوگوں کی خبرگیریاں کرتے ہیں، لوگوں سے پیار محبت، اگر وہ اس دنیا سے گئے اور ان کو یہ بیماری پکڑی تو ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے سرگ ہے، ان کے لیے آزمائش ہے. جی ٹھیک ہے. تو ڈنڈا وہی ہے. ایک ڈنڈا جو ہے بے گناہ کے اوپر پڑتا ہے تو وہ مظلوم ہے، ایک ڈنڈا مجرم کے اوپر پڑتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ اس کو ڈنڈا پڑے. یہ فرق ہے. میڈیا والے جو آج کل کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، میڈیا والے ظاہر ہے کہ وہ اپنی زبان نہیں بولتے، ان کے زبان میں کوئی زبان رکھ کر کے بولتا ہے. وہ بھی انسان ہیں اور وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاج ہیں. آج کل کی میڈیا کے لوگ بھی اپنی غریبی، موقع اچھا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھل لو، یہ تھوڑی کوئی دیکھتا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو آج کل میڈیا کے اندر چند لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. جیسے کہ وہ ایک جو ہے کیا نام ان کا، بڑا مشہور نام ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ ان کی وہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، سب بہت سارے، بلکہ ان کی اکثریت ہے جو دیش کو صحیح رخ دینا چاہتے ہیں، جو دیش کو صحیح سمت کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، چند بکاؤ لوگ ہیں، بکے ہوئے دلال ہیں، اور وہ اپنے مفاد کے، وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ حکومت کے بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن کے کسی کے بھی نہیں ہیں. وہ ان کو پیسہ، سب سے زیادہ پیسہ پیارا ہے. ان کو دیش بھی پیارا نہیں ہے. دیش ٹوٹے، دیش ختم ہو، دیش مرے، دیش کے اندر نفرت پیدا ہو، دیش کے اندر عداوت ہو، بغض ہو، ان سے اس سے کوئی غرض نہیں. ان کو چاہیے پیسہ 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 پیسہ، ان کا دھرم ہے. تو چند ایسے بدماش قسم کے غنڈہ گردی کرنے والے لوگ نیوز میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت نہ ملے اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. جو لوگ ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ ملک کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ ظلم کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو جو لوگ ہندو مسلم کی میڈیا لے کے چل رہے ہیں اور ایک فرقے کو، خاص طور سے مسلمانوں کو آتنکوادی، دہشت گردی، ٹوپی، داڑھی، فلاں، علم گلم، یہ تمام سب دکھا کر کے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ بدماش لوگ ہیں، یہ کسی کے دوست نہیں ہیں، ملک کے بھی دوست نہیں ہیں، یہ ملک کے دشمن لوگ ہیں. انہیں میری نصیحت یہ ہے کہ سدھرو، اور ابھی بھی وقت ہے. ملک کی خدمت کرو، دیش کی خدمت کرو، دیش کو آگے لے جانے والوں کی خدمت کرو، دیش کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں بچانے کی کوشش کرو. ابھی آج ہی میرے پاس کوئی ویڈیو آئی تھی، کسی نے بتایا، ہمیں تو آج پتہ چلا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑے گاندھی جی کے زمانے میں، نہرو گاندھی کے زمانے میں کوئی عبدالحمید صاحب تھے. آج ان کے بیٹے کوئی یوسف عبدالحمید ہیں، جو کرونا کی دوا، ان کی کمپنی شلپا یا کچھ اس طرح کی کمپنی ہے دواؤں کی، میڈیسین، جو ویکسین اب بنائے گی 1-2 مہینے میں، وہ انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے. تو ہمیشہ، اور ہندوستان کے بڑے مالداروں میں ان کا نام آتا ہے، اور دیش کی خدمت کرنے میں، دیش کے لیے بہت کچھ قربانیاں، بہت کچھ کمپنی نے دیا ہے. تو ایسے لوگ بھی دیش کے اندر موجود ہیں جو مسلمان ہیں. اور مسلمان، خیر میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہ رہا کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا جانتی ہے اس کو. کیا ہم بیان کریں اور کیا نہ کہیں، ہمیں اس سے نہیں لینا. سب کی خدمتیں ہیں. ہمیں چاہیے ہم سب کی محنتوں کا، خدمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اور محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ اپنے وطن کے جہاں رہتے ہیں اس کے ذرے ذرے سے پیار کریں، محبت کریں، وہاں کے ہر ایک کے ساتھ مل جل کر کے محبت سے رہیں. رزق کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں برکت عطا. اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں زیادتی ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، وَيُنْسَى لَهُ أَجْرُهُ، اور اس کے گناہ مٹائے جائیں، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رحم کو، رحم ملس یعنی ددھیالی ننھیالی رشتوں کو وہ جوڑے.
चचा हैं, दादा हैं, फुफ्फू हैं, मम्मी हैं, खाला हैं, नानी हैं, नाना हैं, भाई हैं, बहन हैं, फुफ्फू हैं, इन सब से रिश्ते और नाते मजबूत करें। आज वक्त मौजूद है ये सिला रहमी का। बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों में गरीब भी हैं बेचारे, या गरीब नहीं भी हैं। आज मालदार आदमी भी मिस्कीन बन गया है। जो बेचारे ज़कात सदक़ात निकालते थे, आज वो वही ज़कात और सदक़ात के मोहताज बन चुके हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमको दिया है तो ये मौका अच्छा है कि हम उनके साथ जो है सिला रहमी करें और उनको दें। भले अपने ज़कात के पैसे, अगर आप ज़कात रमज़ान में निकालते हैं, अभी निकालें, अभी ज़रूरत है लोगों को, निकाल करके बांट दें, पैसा बांटें लोगों को। ये नहीं कि चलो गल्ला दो, चप्पल दो, जूते जो, आपका हक नहीं है। जब आपने ज़कात निकालनी है तो आप पैसा जो निकाल रहे हैं वही दें। गल्ला निकाल रहे हैं तो गल्ला दें, नहीं तो आप पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा उसके हैंड में दें। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि उसको गल्ले की ज़रूरत ना हो, तो आप पैसा दें ताकि वो पैसा इस्तेमाल करे बेचारा। जी। घर में तरावी की नमाज, घर में तरावी की नमाज के बारे में मैंने बताया, ये बंद है क्या? चल रही नहीं रहा है, स्टॉप है? यहाँ चल रहा है। नहीं, लोग यहाँ पता नहीं क्यों हट गया होगा। कहाँ हट गया होगा। घर में तरावी की नमाज कायम करें अपने बच्चों को लेकर के। चल तो रहा है। हाँ, नहीं, यहाँ एक ही मैसेज अटका हुआ है। तो घर में आप तरावी की नमाज पढ़ें बच्चों को लेकर के, जमात के साथ जैसे नमाज पढ़ते हैं ऐसे तरावी की नमाज आप घर में अदा करें। देवबंदी मेरे ऊपर इरहाबी और आतंकवादी का इल्ज़ाम लगाते हैं। कौन? देवबंदी और दूसरे मुसलमान। दूसरे नहीं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को दहशतगर्द या आतंकवाद या इस तरह की बात करता है, उसे अल्लाह से डरना चाहिए और उसे चाहिए कि वो तौबा करे अल्लाह ताला से, और बग़ैर किसी इल्ज़ाम, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दलील के किसी को, अपने भाई को आतंकी कहना, दहशतगर्द कहना, ये नहायत ही खबासत है। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और ऐसे मौलवियों को भी हिदायत अता फरमाए जो लोग एक दूसरे की कब्र खोदते हैं। मन हफ़र बिरन लिअख़ीही वक़ाफ़ी, याद रखो, जो अपने भाई के लिए कब्र खोदता है, उसी जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में जाता है। ठीक है, तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज नहीं तो कल आप भी दबाए जाओगे तो पता चलेगा कि कौन आतंकी है, कौन इरहाबी है। इसलिए अल्लाह से डरो, आपस में एक दूसरे की इस्लाह करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे को खैर खैरियत दिया करो। ये इरहाबी, दहशतगर्दी, आतंकवादी कहकर अपनी कद ऊंचे करने की कोशिश न करो। ये वक्त ऐसा नहीं है, या कभी भी किसी भी वक्त गलत बात है। जी, और कोई सवाल? बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल करके, माशाल्लाह। कितनी तादाद होगी तकरीबन? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, 160 170 इतनी रात को। बहरहाल बड़ी मसरत हुई, वाह वाह। और मैं समझता हूँ कि अगर सवेरे में आऊँ, मगरिब में या असर में लाइव हूँ, तो बहुत सारे अहबाब इस्तिफादा करेंगे। सवाल जवाब ही की नशिस्त रखनी है, तकरीर की नहीं। तो इंशाअल्लाह हम वक्त से पहले आपको ऐलान कर देंगे कि हम कब लाइव आएंगे। तो अपने अपने सवालात अपने तैयार रखें, दुनिया में कहीं भी, तो इंशाअल्लाह उनके जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। लॉकडाउन में दावत व तबलीग। हाँ, लॉकडाउन में दावत व तबलीग का बेहतरीन ज़रिए ये देख रहे हो। लॉकडाउन है, घर में बैठा हूँ, आपसे मुखातब हूँ। ऐसे ही जो उलमा हैं, मशाइख हैं, उनको चाहिए कि वो घर में बैठ कर के लोगों से मुखातब हों। अपने देश के, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, जहाँ कहीं भी रहें, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़रिए को, ये जो अभी अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी क्या कहते हैं, फेसबुक को या कैमरे को, जिसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग शर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इसी को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल कीजिए। कितनी बड़ी बात है ये, माशाल्लाह। आप इसके लिए कुरान सुनाइए, आप कुरान का तर्जमा, तफसीर, तकारीर, सवाल जवाब, जो भी जिसको भी अल्लाह ने जैसी तौफीक दी है, तो उनको चाहिए कि वो अल्लाह के दीन की लोगों को सही बात बताएं, लोगों को सही गाइड करें, सही रास्ता बताएं। समझ रहे हैं हम? किसी को गुमराह न करें, कोई भी हो, सही गाइड करें, सही रहनुमाई, सच्ची बात बोले, अच्छी बात बोले। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी अब्बास साहब, बारक अल्लाह,
जज़ाकल्लाह खैर, मिस्यार अहलन व सहलन। जवाज मिस्यार का क्या हुक्म है? जवाज मिस्यार, ओहो बड़ा गहरा सवाल। ये मिस्यार का लफ्ज़ जो है अरबी लफ्ज़ है और ये खलीज में चलता है कि जिसके अंदर मेरा ख्याल है, मैंने ज़्यादा तो नहीं जानता मैं इस सिलसिले में, तब रहा कि शरई निकाह के जो शराइत होते हैं इस निकाह में मौजूद, जिसमें यह होता है कि औरत कुछ शर्तें लगाती है कि वो मुतालबा करती है कि आप मुझसे शादी करें, तो वो आपके घर नहीं जाना चाहती, बल्कि वो मिसाल के तौर पर वो कहीं टीचर है, कहीं डॉक्टर है, कहीं सर्विस में है या कहीं कहीं कुछ है, तो उसका अपना घर है, तो वो चाहती है कि आप उसके घर जाएं और वहाँ पे हफ्ते में वो शर्त लगाती है कि 1 दिन 2 दिन उसके साथ ठहरें, छुट्टियों के दिनों में फिर वो अपने ड्यूटी पे चली जाएगी और इस तरह से आप भी अपने कारोबार में लग जाएं। तो ये शर्त लगाती है वो। उसमें निकाह के जो शराइत होते हैं जिसमें 4 शर्तें हैं, निकाह की लिए 4 शर्तें हैं, जिसमें नंबर 1 महर उसका मुतय्यन होना, नंबर 2 आदिल गवाह जो है मौजूद हों, दो आदिल गवाह हों, नंबर 3 ईजाब व कबूल यानी मर्द से कबूल हो और औरत से ईजाब यानी वो जवाब दे, ईजाब व कबूल उसको बोलते हैं, और नंबर 4 वली अम्र की इजाज़त यानी जो वली अम्र है, सरपरस्त है, उसकी इजाज़त। ये चारों शर्तें पाई जाएं तो ये निकाह सहीह कहलाता है। कोई औरत कोई लड़की बगैर अपने सरपरस्त की इजाज़त के जो भाग जाते हैं, जो कोर्ट में शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज, फलानी मैरिज, ठिकानी में, गन्ने में, फलानी जगह, खेतों में, अस्तगफिरुल्लाह, होटलों में निकाह, ऐसा नहीं होता है। ये इस्लाम के अंदर नहीं है, ये हराम है, ये जिनाकारी है, समझ रहे हो। वली अम्र जिस बाप ने, जिन सरपरस्तों ने आपको पाला है, पोसा है, उनकी इजाज़त ज़रूरी है, तो उनकी रजामंदी होनी चाहिए और फिर शादी होती है। तो ज़वाज मिस्यार जो होता है, सय्यर युसय्यरु, चलने यानी आसान करने वाली शादी ये है एक तरह से, जिसके अंदर कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं होता कुछ भी, बल्कि ऐसे निकाह हो जाता है गवाहों के सामने। तो ये कोई हर्ज नहीं, अगर कोई करता है तो जायज़ है, क्योंकि इसमें शादी के तमाम इसके अंदर वो पाए जाते हैं, शुरूत पाए जाते हैं, बेशक जायज़ है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो बिस्मिल्लाह करें आप लोग। गुस्ल का तरीका, निफास, उसमें आ रहा है एक तो आया पर कोरोना में गुस्ल का तरीका। गुस्ल कोरोना में हो या गुस्ल नजासत या जिसको कहे जनाबत हो, नापाकी का गुस्ल हो, तो उसका तरीका तो आपको पता होना चाहिए। किसी ने सवाल किया है तो उसका तरीका यही है कि आप पहले शर्मगाह वगैरह जहाँ गंदगी लगी है उसको साफ कर लें, फिर साबुन से हाथ धुल लें, फिर उसके बाद वज़ू बनाएं, जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं। उसके बाद पहले दाहिने से फिर बाईं तरफ से, जैसी तौफीक हो। दरिया है तो दरिया में कूद गए, समझ रहे हैं, नहर है तो नहर में कूद गए, बोरवेल चला बोरवेल के नीचे वज़ू बना करके बैठ जाएं, जैसा है उस तरह से आप पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाएं, मल के धुलें, बस यह है गुस्ल का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्लाह सुनार सलाम बोल रहे हैं। हैं? सुनार सैफुल्लाह हाँ, सलाम बोल रहे अहलन व सहलन सैफ भाई, माशाल्लाह जद्दा से आप भी आ गए। चले, मैं बहुत देर हो गई, मैंने सोचा बस ट्राई कर रहा था मैं। शेख मोहम्मद अब्बास मिनल हिंद, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब्बास भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। घर पे जुमा नहीं पढ़ सकते भाई, घर पे जुमा नहीं पढ़ सकते। कौन है? सलमान दुर्रानी साहब, सलमान दुर्रानी साहब घर पे जुमा नहीं पढ़ सकते। मस्जिद के अंदर जुमा है, जमात जहाँ है वहाँ जुमा है, ठीक है, तो मस्जिद के अंदर है। मोहतरम मोहम्मद अकील हमजा अली साहब, शेख आपका व्हाट्सएप नंबर होना है, यही नंबर है जिसके ऊपर मैं लाइव हूँ आपसे। जज़ाकल्लाह खैर। शेख क्या कोरोना मैयत को गुस्ल दे सकते हैं? एक किसी ने सवाल किया है, अबू अब्दुल्ला खान कहते हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी ईरानी थी? इब्रानी या ईरानी, अलमुहिम न इब्रानी थी न ईरानी थी, सब अल्हम्दुलिल्लाह अरबी थी। कोरोना मैयत को गुस्ल दे सकते हैं अगर तमाम हिफाजत हों और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ और तमाम बचने की तदाबीर के साथ, बिल्कुल देना चाहिए, दे देना चाहिए। नहीं अगर ख़तरा है कि ये कोरोना वायरस आपको लग जाएगा या गुस्ल देने वालों लगेगा, तो मट्टी से तयम्मुम, अगर वो भी है, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, अगर वो उसको वैसे ही दफन कर दिया जाए।
अत्तारी साहब आपको दुआ दे रहे हैं। फरहान अत्तारी। अहलन व सहलन फरहान अत्तारी साहब, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, कुछ तबलीगी जमात वालों के लिए भी कह दो, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। और आज उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें, उनका नाम ले ले करके, मसला वो उनका नहीं है भाई, उनका ही मसला नहीं है, उनका तो सिर्फ नाम है। बाकी तो उनका नाम लेकर पूरे मुस्लिम उम्मा को बदनाम करने की चंद शरपसंद अनासिर, शरपसंद मीडिया के लोग कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनसे भी निपटेगा, बेफिक्र रहिए। ये जो किसी के ऊपर भी देखो, सिर्फ तबलीगी जमात ही नहीं, कोई भी जमात हो, कोई भी जमीयत हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंसान हो, इंसान अगर उसे कोई बदनाम करता है, उसके ऊपर झूठी तोहमत लगाता है, अल्लाह ताला उससे निपटेगा इंशाअल्लाह। वो बच गया तो उसकी आल औलाद नहीं बचेगी। ये जितने भी शरपसंद जालिम लोग हैं ना, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, कोई भी हो, कोई राजा हो, कोई महाराजा हो, कोई बादशाह हो, कोई सेठ हो, कोई नौकर हो, कोई गुलाम हो, कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, यहां तक कि अगर बीवी भी अपने शौहर के ऊपर जुल्म करती है, क़यामत के दिन और अल्लाह दुनिया में भी उसे सजा देगा, याद रखो। यही नहीं, इस्लाम ने यह भी कहा है कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने अगर सींग मारी है दुनिया में, क़यामत के दिन उसका भी फैसला होगा। तो ये न कोई सोचे कि दुनिया ही सब कुछ है, टें हो जाएंगे चंद दिनों के अंदर। ये दुनिया चंद दिन की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, को मरना है। राजे महाराजे कितने आए गए चले गए, कोई ना सोचे कुर्सी उसे बचा लेगी। तो भैया किसी को रुस्वा ना करो, किसी को जलील ना करो, वरना तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारी बहन बेटियां जलील होंगी, रुस्वा होंगी। राजाओं महाराजाओं, बड़ो छोटो, कोई भी हो, हमारा ये मैसेज सबके लिए है। हम भी क्यों ना हो, अगर हम किसी को झूठी तोहमत लगाएंगे, झूठे तौर पर रुस्वा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो याद रखो हमारे साथ वो मामला होगा, हमें अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा और हम जलील और रुस्वा होंगे। तो ये ना सोचो भैया कि ये जवानी की जो जवानी और जो ये हुस्न है, ये हमेशा बाकी रहने वाली चीज है, चुचक जाएंगे। वो जो किसी शायर ने कहा था, जो कैसे पता नहीं कौन सा शेर था कि वो छुहारा हो गए, वो जो सेब जैसे जो गाल थे वो छुहारा हो गए सूख कर। तो एक दिन छुहारा हो जाओगे तो फिर कोई घास डालने वाला नहीं होगा, याद रखना। इसलिए दुनिया से डरो, अल्लाह से डरो। औरत दरगाह जा सकती है, औरत दरगाह जा सकती है, औरत दरगाह जा सकती है। मोहतरम, अब ये औरत क्या, दरगाह का जो लफ्ज़ है, ये दरगाह इस्लाम के अंदर नहीं है। ये जो दरगाह का लफ्ज़ है ना, ये इस्लाम में नहीं है। कब्र है, कब्रिस्तान है, जहाँ आम लोग दफन होते हैं। ये दरगाह, ये मज़ार, ये इस्लाम नहीं है। तो आम कब्रिस्तान में भी औरत नहीं जा सकती, तो दरगाह बदरजौला नहीं जा सकती। बल्कि लानत होती है ऐसी औरत पर जो किसी दरगाह या मज़ार की ज़ियारत के लिए जाती है, उसके ऊपर जब तक वो लौट नहीं आती है, फरिश्तों की लानत होती है ऐसी औरत पर। तो कब्रिस्तान जाना कसरत के साथ औरतों का मना है। चे जाए कि दरगाहों के ऊपर जो एतकाब बैठी रहती हैं और जो जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो दरगाह ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में दरगाह ही का वजूद नहीं है। ये सब खाने पीने के धंधे हैं, याद रखो, ये इस्लाम नहीं है। आज देखो लॉकडाउन पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, अनाया नाम कैसा है? इनाया कहते हैं निगरानी को, रियायत को। अच्छा नाम है, बुरा तो नहीं है। इनायत होता है नाम। जैसे हमारे एक दोस्त हैं शेख इनायतुल्लाह मदनी, बॉम्बे के अंदर रहते हैं, तो इनायत, हाँ, बच्ची का भी नाम रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और कोई सवाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है ये? अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब, अहलन व सहलन, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और अबू अब्दुल्ला इब्रानी शायद ख़ानदान का नाम है, पता नहीं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन ईरानी या इब्रानी कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बीवियों में से नहीं थी। जी साहब, मोहम्मद जैद और AIAMI सलाहुद्दीन साहब, माशाल्लाह। अच्छा, इंडिया का मीडिया बहुत ख़राब हो चुका है, शेख कुछ नसीहत कर दो। मेरी नसीहत उनको कहाँ पहुँचेगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे, वो पैसों की आवाज़ सुनते हैं भाई, पैसों की आवाज़ सुनते हैं वो। मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे का, मेरे पास पैसे होते तो मैं भी उनको देता, फिर वो जैसे चाहता मैं वो बोलते। वो तो चंद लोग हैं, सब नहीं हैं। रविश कुमार साहब, हाँ उनका नाम आया, और कोई शर्मा साहब हैं। ये लोग वो हैं जो हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, और ऐसा नहीं है। और एक चौधरी हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं। बेचारे दो चार हैं, और कुछ लोग हैं, बहरहाल छोटे मोटे जो लोग बेचारे हैं वो लोग तो खैर बोल ही रहे हैं। क्या ज़कात की रकम गैर कौम को दे सकते? बाकी जो है दूसरे चंद एक ऐसे हैं जो शर फैला रहे हैं। बस अल्लाह ताला उनके शर से हमारे देश को, देशवासियों को बचाए। ये जो हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें या हिदायत दे या अल्लाह इन्हें हिलाको बर्बाद फरमाए। ये भी दुआ किया करो। और दुआए क़ुनूत में, दुआए क़ुनूत लोगों, ये मेरी नसीहत है, बहुत पहले से मैं करता हूँ। हमारे पास कोई बम नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई हुकूमत नहीं, हमारे पास कोई सल्तनत नहीं, कोई माल नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई मीडिया नहीं। हमारे पास एक अजीम शान मीडिया है अल्लाह ताला के तक पहुँचने का, वह है क़ुनूत नाज़िला। दुआ करो, ये हाथ उठाओगे, आंखों से आंसू गिराओगे, और जब दुआ करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनेगा। जो जालिम है अल्लाह उन्हें हिलाक करेगा, बर्बाद करेगा। याद रखो, ये वो हथियार हैं। आज हथियार रख करके हथियार के ऊपर बात आ गई। दुनिया के पास कितने खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, है कि नहीं? देखो, ले के बैठे हैं। कोरोना वायरस को देख रहे हैं, सबको कोरोना वायरस ने घुमाया हुआ है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े सदर, बड़े बड़े सुपर पावर कांप रहे हैं, लड़त रहे हैं। है कोरोना छोटी सी मखलूक अल्लाह की, जो दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी नहीं देती। अल्लाह ताला ने भेजा है अपने एक फौजी को, इस सिपाही को, कि जाओ जरा कान गरमाओ दुनिया वालों की, कान गरमाओ। दुनिया वाले बड़े सरकश हो गए हैं। आया है वो, सबके कान गरम कर रहा है, और सबके हथियार, सब अपनी जगह, स्टाफ, बिल्डिंगें, सब 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 कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब लॉकडाउन है, पूरी दुनिया जो हरकत में थी सब लॉकडाउन है। ऐसा लगता है जैसे वो मुदब्बिर कायनात, वो खालिक़े अर्ज़ो समा, दुनिया वालों में यहाँ कुछ तरमीमात हो रही हैं, कुछ तब्दीलियां कर रहा है। जो उसकी हिकमत थी कि सबको स्टॉप करके ही तब्दीली होगी, तो जैसे घर के अंदर कोई तब्दीली करना होती तो घर वालों को शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शायद ये अल्लाह ताला ने लॉकडाउन करवा कर पूरी दुनिया को कुछ तब्दीली पैदा कर रहा है। हम तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं कि हमारे लिए इसमें खैर है इंशाअल्लाह ताला। और जालिमों के लिए इसमें, उनके लिए बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, जी जनाब, उनके लिए आ रहा है भयानक। वो पिसेंगे, इसलिए उन्हें जुल्म से तौबा करना चाहिए। बाज आ जाओ जालिमों, चाहे अपने कलम से, जुबान से, अपनी हिकमत से, हथियार से, साजिश से बाज आ जाओ। वरना ये अभी कोरोना एक छोटा सा सिपाही है जो वीज़ा, पासपोर्ट, तहकीक कुछ नहीं, निकल गया, चाइना से निकला और फटाफट आज देखो हज़ारों। आज मुझे बरतानिया से हमारे दोस्त का फ़ोन आया, उमर साहब हैं, बिरमंघम में रहते हैं, अल्लाह ताला सेहत व आफियत से रखे। उनकी आवाज़ बड़ी डेंजर लगी। बोले शेख साहब, इस वक्त तकरीबन सैकड़ों हज़ारों लोग बरतानिया के अंदर रोज़ मर रहे हैं, और लाखों लोग मरीज हो चुके हैं इसके। वल्लाह उनकी आवाज़ मुझे बड़ी बेचारी सी लगी, बेचारे उमर भाई। उन्होंने मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप पर भी गुफ्तगू हुई।
मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो आप सोचिए, पूरी दुनिया परेशान है। अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा जालिमों को, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इन जालिमों को सजा दे इंशाअल्लाह ताला। वो या ये अपनी हरकतों से बाज आए। जी। एक हाथ जख्मी है, वजू कैसे करें? बहुत बार है सवाल। एक हाथ जख्मी है तो जो हाथ जख्मी है उसे न धुलें। अगर वहां पानी नहीं डालना मना है तो वहां न धुलें, बल्कि पूरा वजू करें। अगर वहां पट्टी बंधी है तो उस पट्टी के ऊपर हाथ भिगो करके सिर्फ आप मसह कर लें, बस। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम बहुत आसान है। इस्लाम बहुत आसान दीन है। जी जनाब अली, बहुत आसान। अमल करने वाला चाहिए, प्यार और मोहब्बत वाला चाहिए। जी। गैर कौम को ज़कात देना। किसी भाई ने, बिल्कुल, अगर ज़रूरत है गैर कौम को भी ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो 8 मसरब बताए हैं, बिल्कुल तालिब क़ल्ब के लिए, मर रहा है उसको भी ज़कात की रकम दें। भूखा है, नंगे हैं, कपड़े नहीं, बिल्कुल ज़कात की रकम दे सकते हैं उनको। नमाज में दिल नहीं लगता। नमाज में दिल नहीं लगता तो अल्लाह से तौबा करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें और दुआ करें और अल्लाह से कहें अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह हमारे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदमी अता फरमा। जी। और सवाल कहाँ गया? नमाज में रफ़े देन ज़रूरी। मसूद आरिफ साहब, शेख साहब, वफ़ात नबी लेक्चर्स। अच्छा माशाअल्लाह। कश्मीर में लॉकडाउन, क्या कोई ना बोला? आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। जी जी बेशक, कश्मीर ही क्या, कहाँ जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहे हैं, जिन जिन के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं, हाँ, अल्लाह ताला ने सब, ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जहाँ जहाँ कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म होता है, अल्लाह ताला बहरहाल उसे सज़ा देता है, बेशक। और बिना अंडरवेयर नमाज। अकील चौधरी साहब, इंशाअल्लाह कमज़ोर मुसलमान, कमज़ोर समझकर हर जगह मिटाने की। मुसलमान बेशक अगर वो ईमान उसका दुरुस्त नहीं है तो कमज़ोर है, तो उसे मिटाना बहुत आसान है। लेकिन जब ईमान कवी होता है, अकीदा सही हो, तो यकीनन मुसलमान को कोई नहीं मिटा सकता। और ये कौन मिटाएगा? कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सऊदी अरब में हैं, यहाँ देखिए रोज़ाना लोग मुसलमान हो रहे हैं। फिलिपीनी हैं, ओगंडी हैं, आपके क्या कहते हैं, नेपाली हैं, खुद इंडियन हैं, और क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग सऊदी अरब में मिलेंगे आपको। कसरत के साथ मुसलमान हो रहे हैं जनाब। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जो आदमी यहाँ इस्लाम ना कबूल करता हो, पूरे खलीज में। ये अल्लाह का फजल है। आए हैं लोग, चाइनीज सैकड़ों की तादाद में मुसलमान हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस्लाम किसी के बाप का दीन नहीं है, इस्लाम इंसानियत का दीन है, इंसानों का दीन है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जो इंसान हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। ऐसी कौन सी बात रही? ये हमारा कमाल नहीं है, ये कमाल इस दीन का है। इस दीन के अंदर वो रोशनी है, वो चाशनी है, वो लज्जत है, वो मिठास है, वो रहमत है, वो अमन है, वो शांति है, कि जिसे कोई गहराई से पढ़ता है, समझता है, तो वो मुसलमान हो जाता है। इसमें हमारा कौन सा कमाल? बल्कि हम तो बहुत बड़ी रुकावट है मोहतरम इस्लाम के रास्ते में। जी, मुसलमान बहुत बड़ी, इसीलिए इनकी ठुकाई हो रही है। हम बहुत बड़ी रुकावट हैं इस रास्ते में। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और अल्लाह हमें सही दीन पर चलने वाला बनाए। जी। बगैर अजान के घर में फर्ज नमाज पढ़ सकते? जी जी, अजान तो मस्जिदों के अंदर हो रही है, तो मस्जिद के अंदर अजान हो रही है तो आप फर्ज पढ़ लें, वही काफ़ी आपके लिए। अगर कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं जहां अजान नहीं होती, तो बेशक आप अजान घर ही में दें, अजान इकामत घर में दे करके नमाज पढ़ें, जायज़ आपके लिए। क्या जुमे की नमाज घर में हुजूर मैंने बताया नहीं हो सकती है, नहीं जायज़ है वो। गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम को ज़कात के पैसों से खाना खिला सकते? बिल्कुल खिला सकते हैं साहब, ज़कात की रकम दे सकते हैं। वो तौबा करते हैं बार बार और गुनाह भी करते हैं, कोई है, अल्लाह से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, बेशक तौबा अल्लाह कबूल फरमाता है। माशाअल्लाह, अख्तर अंसारी साहब, शब्बीर अहमद साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और कौन है ये? निसार साहब, माशाअल्लाह। शम्स खान साजी साहब
वफ़ात रसूल जो बहुत पहले का लेक्चर है, कहाँ मिलेगा? कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह उसे डाउनलोड कर देंगे, यूट्यूब पर है, मिल जाएगा आपको। ज़िया तकी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह। सैयद हुसैन सिकंदर साहब, नमाज में रफ़ुल देन करना जायज़, बिल्कुल 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 ज़रूरी, सुन्नत है साहब, सुन्नत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सुन्नत है। घर में तरावी पढ़ सकते हैं इन हालात में, बेशक पढ़ना है, पढ़ सकते नहीं बल्कि पढ़ना है आपको मोहतरम जी। एक बज चुके शेख, सोना भी है, बिल्कुल सोइए, अहलन वसहलन। अच्छा, अबू अहसन मक्की साहब, बिल्कुल सो जाइए। हमारे यहाँ भी 1 बज रहे हैं भाई, यहाँ भी 1 बज रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हमने अभी खाना नहीं खाया भाई, अब चल करके हम खाना खाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला कल हम फिर ऐलान करके आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर अहबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग तशरीफ़ लाए, दुआओं की दरख्वास्त है, जो कुछ गलती हुई होगी उसे माफ़ करना। जिनका जवाब नहीं दे सके हैं वो इंशाअल्लाह हम अगली मजलिस में जवाब देंगे, इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको हर मुसीबत, आपकी औलाद को, घर वालों को, सबको अल्लाह हर मुसीबत से महफूज रखे। और जहाँ भी रहें, जिस मुल्क के हैं, अल्लाह हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमाए, मुल्क के बासियों की हिफाजत फरमाए, तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह हम सबको खैर वाफियत से ईमान और इस्लाम की ज़िंदगी पर जिंदा रखे और इसी को मौत फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।